حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو تازہ فرما دیا، اور میں صرف جو ہے چند باتیں برکتاً آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اور اکثر میرا طرز یہ ہوتا ہے کہ جو اعتراضات اولیاء اللہ پر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو کرتے ہیں، اس کا جواب دینا یہ میرا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو اسی پر جو ہے چند باتوں کو رکھ کر اس کا جواب بھی میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آ کر رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ڈیلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پہلی بات، حضرت نے بہترین انداز سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کو مستند حوالوں سے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے رکھا۔ جو کچھ بھی کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت نے بیان کیے، یہ مستند کتابوں سے بہجت الاسرار جیسی مستند کتابوں سے جو ہے حضرت نے آپ لوگوں کے سامنے آ کر جو ہے ان کراماتوں کا ذکر جو ہے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ظہور پائے تھے، ان کو آپ لوگوں کے سامنے حضرت نے آ کر بتائے ہیں۔ جب ہم کرامات کو جو ہے ذکر کرتے ہیں، یہ لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں چند کراماتوں کو، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند کراماتوں کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ کرامت جو بیان کی ہے آپ نے، یہ ہم لوگوں کے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ ہمارے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ جو ہے پہلا جو ہے کیا کہتے ہیں، اس کرامت کو رد کرنے کے لیے جو ہے یہ الفاظ یہ لوگ اگر استعمال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو چیز عقل میں سما جائے وہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی، وہ چیز کرامت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو عقل دنگ رہ جائے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ جو چیز عقل میں سمائے نہ جائے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو دوستو، جو بات عقل میں سما جائے اس کو کرامت کہتے نہیں، تو آپ لوگ پہلے کرامت کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ کرامت کو جو ہے سمجھے ہی نہیں۔ اگر سمجھ لیتے تو اس طرح کے اعتراضات نہیں رکھتے۔ دیکھیے، عقل آ کر جو ہے دنگ رہتی ہے اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت قرآن میں آ کر ذکر کرتا ہے۔ ذکر کرتے ہوئے کئی باتوں کو اس میں آ کر اللہ رب العزت جو ہے ان اصحاب کہف کے کرامتوں کا بھی ذکر کر رہا ہے اللہ۔ مثلا پہلی بات کیا ہے کہ جو ہے جب وہ آرام کر رہے تھے تو سورج جو ہے ان کو ڈسٹرب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے سورج کے رخ کو اس طرح پھیر دیا تھا، طلوع ہوتا تو دائیں طرف ہو جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف ہو جاتا۔ کیوں؟ سورج کی کرنیں ان کے اوپر نہ پڑ سکے اور اس کی وجہ سے ان کی نیند خلل نہ پا سکے۔ اللہ نے سورج کے راستے ہی کو جو ہے بدل دیا۔ کب تک؟ کتنے سال؟ 300 سال تک اللہ رب العزت نے جو ہے یہ سورج کے جو ہے یعنی جو راستہ ہے اسے آ کر بدل دیا۔ طلوع اور غروب کو جو ہے اللہ نے آ کر جو ہے بدل دیا۔ تو یہ بات کسی کے لیے سورج اپنا راستہ تبدیل کر لے یہ عقل میں بات سماتی نہیں ہے، لیکن عقل میں نہ سمانا ہی کرامت ہے۔ قرآن یہی درس ہم کو کر دے رہا ہے۔ جو چیز عقل میں نہ سما جائے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے یہ بات عقل میں نہیں سماتی تو وہ آ کر جو ہے اس آیت کے بنا پر جو ہے کیا ہو جائے گا، اس آیت کے انکار کرنے کی بنا پر وہ آ کر جو ہے کافر ہو جائے گا کہ مجھے عقل میں نہیں سماتی اس لیے میں یہ کرامت کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی کہہ دیا تو وہ کیا ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ کرامت۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے 300 سال تک سو رہے تھے۔ بولیے کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیے اگر آپ لوگ ایک ہفتہ، 300 سال تو 100 سال کا تو اگر معاملہ چھوڑیے، ایک ہفتہ اگر جس جگہ لیٹے ہوئے ہیں اسی جگہ میں اگر آپ پڑے رہیں کھائے پیے بغیر، تو ویسے ہی جو ہے آپ کو کیا کرنا معلوم کیا، لے کے جا کے قبرستان میں دفنا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے آپ کھانا پینا اٹھنا سیر کرنا، ورنہ اگر جو ہے ویسے اگر بچ کر جو ہے آپ کی جان اگر بچ بھی گئی تو جو ہے آپ کیا ہو جائیں گے، آپ کا پورا جسم جو ہے پکڑ لے گا، اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔
लेकिन देखिए 300 साल वो सो रहे थे, अल्लाह जो है उनको करवटें भी बदला रहा था, करवटें भी बदला रहा था, बगैर खाए के वो उसी तरह बैठे हुए थे, वो उसी तरह बैठे हुए थे। और देखिए ये देखिए अल्लाह वालों की अगर जो है करामत क्या होती है, कुरान हमको बता रहा है, अल्लाह वाले सो रहे थे 300 साल तक, कुत्ता जो है उनके साथ जो कुत्ता था, वो कुत्ता बाहर आकर जो है दरबान का अगर जो है काम कर रहा है, और वो 300 साल तक जो है जिंदा रहा। ये अल्लाह वालों की करामत है कि 300 साल तक जो है वो लोग जिंदा रहे, अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन फिर भी जो है इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में बयान कर रहा है। मालूम हुआ जो अकल तस्लीम नहीं करती उसी को करामत कहते हैं, उसी को करामत कहते हैं। ये ऐसा नहीं कि जो है जो बात हम लोग कहते हैं कि ये अगर जो है ऐसा अगर मुमकिन हो ही नहीं सकता, ऐसी करामत मुमकिन हो ही नहीं सकती, इस तरह की बात हरगिज नहीं है। अल्लाह अगर चाहे तो अपने वलियों के जरिए से जो है किसी भी तरह से जो है करामतों का ज़ुहूर आकर करा सकता है। जो मुमकिन ना हो, जो मुहाल है, ऐसे चीजों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कर सकता है, अल्लाह के वलियों के जरिए से जो है उन बातों को जो है करामात के जरिए से जो है उन बातों को जो है पेश करवा सकता है। अब देखिए सूरह कहफ ही का अगर जो है वाकया है, सिर्फ इन दो बातों को रखकर जो है मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा, फिर जो है आगे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए सूरह कहफ ही का वाकया है कि सूरह कहफ में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम का अगर जो है वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर जो है नकल, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमाता है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम, चंद उलमा कहते हैं कि जो है वो नबी थे, चंद उलमा कहते हैं कि वो अल्लाह के वली थे। इख्तलाफ है उलमा के दरमियान में कि वो अल्लाह के नबी थे या वली थे। तो जुमहूर का मौक़िफ़ क्या है, वो अल्लाह के वली थे। अब अल्लाह के वली का वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में जिक्र कर रहा है हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। क्या देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह हुक्म देता है कि जाएं, उनके साथ आकर रहें, और आकर जो है इल्मुल लदुन्नी क्या है ये अगर जाने, बोलकर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके साथ जाने का अगर हुक्म आकर देता है। अब जाने के वक्त में जो है वाकया तफसीलन जो है कुरान में सूरह कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खाना यानी ज़ादे राह के लिए जो है खाना तैयार कर लेते हैं, और उसमें मछली जो है तल के जो है भून कर जो है मछली को भी अगर रख लेते हैं खाने में। जो ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खिज़्र अलैहिस्सलाम के मकाम पर पहुंचते हैं, देखिए मकाम पर पहुंचे, हालांकि वो खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई, अभी खिज़्र अलैहिस्सलाम आकर दुआ नहीं किए, अभी करामत का ज़ुहूर नहीं किए, सिर्फ उस मकाम पर पहुंचते हैं, वहां की आबो हवा जो है उस मछली पर पड़ती है, उस मछली पर पड़ती है, और उसके बाद जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ जाते हैं, और जाकर जो है खिज़्र अलैहिस्सलाम को ना पाने की बिना पर जो है थकान की वजह से क्या करते हैं, खाना खाने के लिए जो है खाना तलब करते हैं। जब खाना खोलते हैं तो उसमें मछली गायब है, मछली गायब है। तो अपने खलीफे से पूछते हैं कि मछली कहाँ है, तो वो कहते हैं कि जो है जिस जगह पर आप इबादत करने के लिए रुके हुए थे वहां पर एक वाकया पेश आया, उस वाकये को बयान करने से शैतान ने मुझे भुला दिया, शैतान ने मुझे भुला दिया। और वो वाकया क्या है, जिस जगह आप नमाज के लिए इबादत के लिए रुके हुए थे उस जगह पर अचानक ये भुनी हुई मछली में जो है जान आ गई, और वो तड़पने लगी, और उछलकर जो है रास्ता बनाते हुए ये दरिया में जा मिली, मगर जो है वो उनके खलीफे ने अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अरे वही तो मकाम है जहां हम लोगों को जाना है, बोलकर जो है फिर वापस अपने पैरों के निशान पर जो है उस मकाम को पहुंचते हैं, तो वहां पे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को पाते हैं। अब देखिए इस आयत से कितने बातें हमको अगर मालूम होती हैं। अल्लाह के वलियों के जिक्र से भुलाता कौन है, शैतान है, और याद दिलाता कौन है, अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात जो है अल्लाह के वलियों की करामत को याद दिलाता है, और भुलाता कौन है, शैतान है। तो मालूम हुआ जो कोई अल्लाह के वलियों की करामतों से दूर करता है वो कौन सी गिरोह है, वो कौन सा गिरोह है, शैतान के गिरोह हैं ये लोग। और जो अल्लाह के वलियों से मिलाता है ये किसकी जात है, ये अल्लाह की जात है। ये बात हमको अगर समझ में आई। और दूसरी बात देखिए, मैं यही कहता हूं, जो लोग अगर मुझसे अगर पूछते हैं कि अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाकर जो है कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वहां जाके अल्लाह से मांगना चाहिए,
वहां जाके जो है अल्लाह ही से अगर मदद तलब करना चाहिए, अल्लाह के वलियों के पास जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए। ऐसा मांगना ये शिर्क है, ये बिदत है, ये कुछ है, ये फुला है, इस तरह अगर कहते हैं, मैं उन लोगों से इस आयत की बिना पर कहता हूं, इस आयत को दलील बनाकर कहता हूं कि अल्लाह के वलियों के पास जाकर मांगने की जरूरत ही नहीं। जो कुछ भी मुराद है अल्लाह के वलियों की बारगाह में अगर पहुंच जाओ, अल्लाह के वलियों की निस्बत से वो मुरादें तुम लोगों की पूरी हो जाएगी, करामत का ज़ुहूर होना शुरू हो जाएगा, करामतों का ज़ुहूर होना शुरू जो हो जाएगा। इसीलिए मछली जो है अल्लाह के वली रहने की जगह में पहुंची तो अल्लाह ने क्या कर दिया, उस मछली में जो है जान भर दी, और वो जान भरने के बाद वो अपना रास्ता बनाते हुए वो जो है दरिया में जा मिली। तो मालूम हुआ अल्लाह के वलियों की चौखट में ये बरकत है कि वहां पहुंचते ही जो कुछ भी परेशानी मुसीबत है वो दूर हो जाती है और करामतों का ज़ुहूर होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह के वलियों की चौखट की ये बरकत है। गया यानी मछली वहां पहुंचते ही उसमें आकर जो है क्या हो गया, यानी जान भरकर जो है वो आकर जिंदा हो गई। तो ये अल्लाह के वलियों की करामत है, वहां जाके पूछने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए देखिए, जिन लोगों को आसिफ ज़दा लोग होते हैं ना, आसिफ ज़दा लोग, वो क्या करते हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचते ही क्या करना शुरू कर देते हैं। बाहर तक क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे, कुछ नहीं हुआ, जाहिर नहीं हुआ। जो ही अल्लाह के वली के बारगाह में कदम रखते हैं तो झूमना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के वली की बारगाह की चौखट की फजीलत है ये। शैतान जाहिर होना शुरू हो जाता है। अब ये लोग वहां भी जो कहते हैं हम नहीं जाते अंदर, क्यों? क्योंकि तुम लोगों के अंदर जो है शैतान भरा हुआ है, आसिफ ज़दा है तुम लोग, इसीलिए अल्लाह के वलियों के बारगाह में जाने से कतरा रहे हो, डर रहे हो कहीं जाएंगे तो तुम्हारा शैतान जाहिर ना हो जाए, इसका अगर जो है खौफ लगा रहता है तुम लोगों को। तो मालूम हुआ कि जो है अल्लाह के वलियों की चौखट की ये फजीलत है। और देखिए, इस जगह में और एक बात भी हम लोगों को समझना है जो करामत के ताल्लुक से है। देखिए, भुनी हुई मच्छी, जो मच्छी मर गई है, मरने के बाद भुनी जा चुकी है, भुने जाने के बाद उसमें जान आ सकती है, और जान अगर आ जाए तो रास्ता बना सकती है, और रास्ता बनाकर क्या दरिया में जाकर मिल सकती है? नहीं। अकल तस्लीम करती है इस बात को? बोलिए भाई, अकल तस्लीम करती है क्या? क्या तुम्हें टेक्नोलॉजी आज बनाकर है क्या? बोली कि जो है मछली जो है भुनने के बाद उस डब्बे में डालकर थोड़ी देर में जो है ये बटन ऑन करते ही जो है मछली जिंदा हो गई। इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई आकर है क्या? क्योंकि टेक्नोलॉजी को मान लेते हैं लोग, टेक्नोलॉजी जो है उसे मान लेते, उस पर भरोसा करते। यहां से लेकर हाथ में मोबाइल को लेकर नंबर डालकर अमेरिका में अगर बात करने के लिए अगर कहें तो बात करते हैं, हालांकि आदमी सामने नहीं है, फिर भी बात करते हैं। उनसे अगर मदद भी चाहते हैं, मदद भी चाहते होंगे ना ये लोग। देखिए, डायल किए, यहां से अमेरिका का नंबर डायल किए, वो बंदा सामने नहीं है, यहां से कोसों दूर है, नंबर डायल किए, डायल करने के बाद बेटे को फोन करते हैं, करके पूछते हैं बेटा पैसा भेज दे, पैसे की जरूरत है। अब बोलिए, मदद चाहे नहीं चाहे ये लोग, और जिससे मदद चाह रहे हैं वो सामने है नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर भरोसा है कि ये टेक्नोलॉजी जो है यहूदी की पैदावार, एक टेक्नोलॉजी पर भरोसा है कि ये आला जो है हमको यहां से अपने बच्चों तक जो है मिला सकता है, जिससे हम मदद चाहते हैं उन तक हमारी बात को पहुंचा सकता है। आले पर भरोसा है इन लोगों को, और हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों पर आकर भरोसा है। अल्लाह ने उनको अगर वो जो है ताकत अता की है, जिसकी वजह से जो है हम यहां से पुकारते हैं या गौसे आजम, तो बगदाद में रहकर जो है गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारी बात को सुन लेते हैं। तुमको यहूदियों की पैदा करता है टेक्नोलॉजी पर भरोसा, और हमको अल्लाह की ताकत जो अल्लाह ने अगर अल्लाह के वलियों को दी है उस पर हम लोगों को भरोसा है। तो दोस्तों, तो मालूम हुआ कि जो अकल तस्लीम ना करे यही करामत है। अकल जिसे तस्लीम ना करे वही करामत है। मछली जिंदा हो नहीं सकती, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ने के बावजूद भी मछली को जिंदा करने वाला अगर जो है आला अभी तक अगर जो है पकड़ा नहीं गया, तो उसके बावजूद जो है हम कुरान की इस आयत पर भरोसा करते हैं, ईमान लाते हैं। क्यों? अकल तस्लीम नहीं करती फिर भी अगर मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज अकल में समाती नहीं उसी को करामत कहते हैं। तो दोस्तों, मालूम हो गया कि जो है करामत वही है जो अकल में समाई ना जाए।
अकल जिस पर दंग हो जाए उसी को करामत आकर कहते हैं। और उसके बाद देखिए एक और बात अल्लाह वालों की अगर मैं जो है आप लोगों के सामने हदीस के रोशनी से जो है रखने की कोशिश करूंगा, मुस्तदरक अलस सहीहैन में इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो है इस हदीस को नकल किया है और हदीस का नंबर 7630 पर 7 है, यानी 7637 है। और इस हदीस के रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं खरजा अलीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और आकर जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खरजा मिन इंदी खलीली जिब्रील, मेरे पास मेरे दोस्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, मेरे दोस्त मेरे खलील जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो आकर तशरीफ लाए थे और आकर उन्होंने एक वाकया मुझे बयान किया बोलकर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाकये को बयान करते हैं। वो क्या वाकया है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर बयान करते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर फरमाते हैं कि एक बंदा जो है अल्लाह के बंदों में से नेक बंदों में से एक बंदा है, वो जो है ऐसे मकाम पर अगर जो है था वो बंदा जो उसकी जो है चट्टानें जो है इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई में जो है अगर जो है बुलंद होकर थी और उसके चारों तरफ जो है पानी था, ऐसे एक चट्टान में जो है वो बंदा जो है अल्लाह की इबादत कर रहे थे। तो अल्लाह अगर जो है उनके खाने और पीने के लिए क्या किया था, एक झाड़, एक जो है अनार का झाड़ जो है वो अगर जो है पैदा किया हुआ था और एक छोटा सा चश्मा जो है वो भी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उनके लिए पैदा किया हुआ था। वो हर दिन सारा दिन सारी रात जो है अल्लाह की इबादत में जो है गुजारा करते थे। बनी इसराइल के कौम के अगर जो है एक अल्लाह के वली थे, उनके ताल्लुक से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है बयान कर रहे हैं कि जो है वहां पे जो है एक अनार का झाड़ और एक पानी का चश्मा अगर जो है वहां पे अगर पैदा हो गया और ये क्या करते, हर रोज सुबह में जो है एक अनार उसमें लगता, उस पेड़ में एक अनार लगता, तो वो अनार को खा लेते और इस पानी को जो है पी लेते और पीकर जो है अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाते। इसी तरह उन्होंने जो है अपनी जिंदगी अगर गुजार दी और गुजारने के बाद जब उनका आखिरी वक्त आया, जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह से इल्तिजा की, ऐ मौला मेरी जब रूह कब्ज करे तो मैं जब सजदे की हालत में रहूं उस वक्त मेरी रूह को कब्ज कर, मेरी रूह उस वक्त कब्ज करना जब मैं सजदे की हालत में रहूं। तो जो है वो क्या करते हैं, सजदे में अगर जो है जाते हैं तो फौरन जो है उनकी रूह अगर कब्ज कर ली जाती है, उनकी रूह कब्ज कर ली जाती है। अब देखिए पॉइंट, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूलुल्लाह, जब से वो सजदे में उनकी रूह कब्ज की गई, आपको अल्लाह ने मबऊस करने तक वो सजदे की हालत ही में है और जब मैं आपको वही लेकर जब भी मैं उतरता और चढ़ता हूं तब भी मैं देखता हूं तो वो सजदे की हालत ही में है, उनका जसद जो है वो सजदे की हालत में अभी भी है। तो मालूम हुआ अल्लाह के वलियों को जो है अगर अल्लाह चाहे तो उनका जिस्म की को जो है का बाल भी जो है बीका नहीं हो सकता, उनका जिस्म जो है सलामत रह सकता है। इस हदीस से एक बात हम लोगों को मालूम। और दूसरी बात, अल्लाह के वलियों की बातों को अगर जो है उनके इल्तिजा को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कबूल करता है, ये बात हमको अगर मालूम हुई। और उसके बाद फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो है वो बंदे जो है जो 600 यानी 500 साल तक इसी तरह उन लोगों का उनका अगर मामला अगर रहा है, 500 साल तक भी जो है वो सजदे की हालत ही में है बोलकर जो है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं। अब उसके बाद देखिए वो कहने के बाद कहते हैं जब कयामत होगी, कायम होगी, तो इनके ताल्लुक से एक मामला पेश आएगा। जब अल्लाह इनको जो है जन्नत में दाखिल करने का वक्त आएगा तो अल्लाह कहेगा इनको जो इतने साल अल्लाह की इबादत में गुजारे, सिर्फ एक अनार और पानी पीकर जो है जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे, उनको अल्लाह कहेगा कि जाओ मेरी रहमत की वजह से तुम अगर जन्नत में दाखिल हो जाओ बोलकर जो है अल्लाह कर कहेगा, तुम मेरी रहमत की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओ बोलकर जो है कहेगा। तो ये बंदे कहेंगे कि ये अल्लाह के वली कहेंगे उस वक्त, अल्लाह तो मेरी अमल की वजह से नहीं, सिर्फ तेरी रहमत की वजह से, क्या मेरे अमल की वजह से नहीं? तो जो है फिर अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ मेरी रहमत की वजह से बोलकर कहेगा। इसी तरह 3 बार मामला पेश आएगा। तीसरे बार भी वो कहेंगे क्या मेरी अमल की वजह से नहीं जन्नत मिलेगी मुझे? तो अल्लाह कहेगा अच्छा तुम्हारा अमल क्या है वो देखिए बोलकर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कहेगा
ان کو جو ہے جہنم کی طرف لے کر جانے کا اگر حکم دے گا، کن کو؟ حضرت وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کر جانے کا حکم کرے گا، تو وہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہوں گے، اس کے آگ کے جو ہے ان شعلوں کی وہ بھپکارے کی وجہ سے جو ہے پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، پیاس لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو پیاس لگتے ہی پانی کے لیے اگر جو ہے تلاش کریں گے، پانی کے لیے اگر جو ہے مانگ کریں گے، تو اگر جو ہے ان سے کہا جائے گا تم کو پانی ملے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تمہاری ساری زندگی کے جو اعمال ہے وہ اعمال جو ہے وہ دے دیں، اور ایک گلاس پانی اگر لے لیں، ایک گلاس پانی لے لیں، تو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ پانی کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کریں گے؟ پانی کو لے لیں گے اور عمل کو اگر دے دیں گے۔ اب اللہ اگر کہے گا اب تمہارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں اس بندے کو جو ہے جہنم میں ڈال دو۔ تو جو ہے جہنم میں جب لے کر جایا جائے گا تو وہ اللہ کے ولی کہیں گے اے اللہ میں مانتا ہوں بے شک کہ جو ہے اگر بندہ اگر جنت میں جا سکتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری رحمت کی وجہ سے ہے، بلکہ تیری رحمت کی وجہ سے ہے، کہہ کر جو ہے اللہ سے کہیں گے اے اللہ مجھے تیری رحمت کی وجہ سے مجھے جنت میں پھر سے داخل کر دے، مجھے جو ہے کہیں گے، تو اللہ کیا کرے گا؟ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے ولیوں کی بات دنیا میں ان کے انتقال کرنے کے بعد 500 سال کے بعد بھی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اگر ایک اونچے پہاڑ پر ہے، چاروں طرف پانی ہے، ان کے تعلق سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، وہ آ کر جو ہے کیسے عبادت کیے ہیں، ان کی زندگی کیا تھی، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اگر اللہ کے ولیوں کی عظمتوں کو اگر بیان کرنا چاہے تو اپنے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی جو ہے اگر کیا کر سکتا ہے، وہ جو ہے ان کی کراماتوں کو جو ہے اللہ رب العزت اگر ظاہر کر سکتا ہے۔ تو یہی جب بنی اسرائیل کے ولیوں کا معاملہ اس طرح کا تھا، ان کے کراماتوں کو جو ہے فرشتے بیان کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ کا عالم کیا ہو سکتا ہے، اور ان اولیاءوں کے سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراماتوں کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آ کر لگا لیجیے۔ تو دوستو کرامات یہ قرآن اور حدیث کے روشنی ہی سے جو ہے ہم لوگ اگر جو ہے اپنا عقیدہ بنائے ہیں کہ کرامات جو ہے اولیاء اللہ کے جو ہے ہو سکتے ہیں، عقل دنگ رہتی ہے پھر بھی جو ہے اگر جو ہے ہم اگر اس کا اگر تسلیم کرتے ہیں، تو انہی کراماتوں کو جو ہے حضرت نے جو ہے بیان کیا تھا